Assalamu alaikum dear students, hope you will be fine. I am Romana Malik and I teach class 10, subject physics, chapter number 2, measurement. Now the table of content, measurement, fundamental quantities, derived quantities and system of units. Now what is measurement? Basically it is the determination of size or magnitude of something. Now the measurement plays an important role to describe and explain the physical world. Over the centuries, man has improved the method of measurements. Now, what is need for measurement in physics? So, if we want to understand any phenomena in physics, we have to perform experiments. Now, experiment requires measurements and we measure several physical properties like length, mass, time, temperature, and so on. Now, the verification of experimental laws and theories, we also need measurement of physical properties. Physical quantities. A physical property that can be measured and described by a number is called physical quantity. ऐसी physical properties जिन्हें हम measured करें और describe करें एक number पे, वो हमारे पास physical quantities कहलाती हैं. For example, mass of a person is 60 kg. अगर हम किसी person का mass calculate कर रहे हैं, we know that mass is a physical property. और इस person का mass 60 kg आया, तो उस physical property को हमने एक number पर describe कर लिया, that is 60 kg. तो ये हमारे पास एक physical quantity आ गई इस person की. Now the next example is length of rod is 5 meter. एक rod है जिसकी length that is a physical property से measure किया, वो हमारे पास 5 meter आई है. तो हमने इसे कर लिया describe कर लिया एक number से, that is a physical quantity of rod. Now area of room is 50 meters square. Types of physical quantities. Scientists divides all the physical quantities into two groups. 1. Fundamental quantities. 2. Derived quantities. Fundamental quantities. Those physical quantities which does not depend on any other physical quantity for their measurement. ऐसी physical quantities जो measurement के लिए दूसरी physical quantities पर depend ना करें, उन्हें हम fundamental quantities या फिर base quantities कहते हैं. For example, length, mass, time, temperature, etc. Derived quantities. Those physical quantities which depend on one or more fundamental quantities for their measurement is called derived quantities. For example, area, volume, velocity, acceleration. Unit. The standard used for the measurement of a physical quantity is called a unit. जो हम अपनी फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजरमेंट करने के लिए जो स्टैंडर्ड्स हम यूज़ करते हैं बेसिकली वो यूनिट्स कहलाते हैं. जिस तरह से मेजरमेंट हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, इस तरह से हमारी मेजरमेंट्स के साथ स्टैंडर्ड का होना भी बहुत ज़रूरी है. अगर हम अपनी मेजरमेंट्स के साथ स्टैंडर्ड यूज़ नहीं करते तो हम किसी भी दूसरे पर्सन को अपनी इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं कर सकते. सो लेंथ के लिए जो हम स्टैंडर्ड्स या जो यूनिट्स यूज़ करते हैं दैट इज़ मीटर, फुट, इंच. फॉर मास, किलोग्राम, पाउंड. फॉर टाइम, सेकेंड, मिनट, आवर. नाउ द फंडामेंटल यूनिट. The unit which can use to express and measure the fundamental quantities are called fundamental unit. Example, meter, kilogram, second, etc. यानी फंडामेंटल यूनिट्स किसे कहते हैं? जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हम मेजर करते हैं उसके साथ जो हम स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट. Now derived unit. The unit used to express other physical quantities that are derived from fundamental unit are called derived units. Derived units हम किसे कहते हैं? जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से ड्राइव करते हैं और फिर उनके यूनिट्स को जब हम फंडामेंटल यूनिट से ड्राइव करें दैट इज़ कॉल्ड derived unit. For example, unit of speed, unit of velocity, unit of force, etc. Now the system of units. A set of units based on fundamental and derived unit is known as system of unit. Now the following types of system of unit are given below. CGS system. This system was first introduced in France and it is also known as Gaussian system of unit. And it is based on centimeter for length, mass in gram in mass and second in time. MKS system. This system is also introduced in France and it is also known as France system of unit. And it is based on meter for length, kilogram for mass and second for time. FPS system.
This system was introduced in Britain and it is called British System of Unit, and it is based on foot for length, pound for mass, second for time. SI system. अब जब प्रीवियस जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स डिफाइन या इंट्रोड्यूस करवाई गई थी डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो ये सब लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गई थी और बहुत ज़्यादा परेशानी थी हर कंट्रीज़ को अपनी अपनी मेजरमेंट को दूसरे कंट्रीज़ इंफॉर्मेशन कन्वे करने के लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी। तो इन कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए 1960 में एक जनरल कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें डिफरेंट कंट्रीज़ के साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट ने हिस्सा लिया और वहाँ कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट्स को स्टैंडर्डाइज किया गया थ्रू एक्सपेरिमेंट, स्टैंडर्ड किया गया ऑल ओवर द वर्ल्ड। उन सिस्टम ऑफ यूनिट्स को एसआई सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी कहा जाता है। ये लिस्ट है जिसमें 7 फंडामेंटल यूनिट्स को डिफाइन किया गया है विद यूनिट। इफ़ यू वांट टू मेजर लेंथ, सो वी मेजर लेंथ इन मीटर, mass in kilogram, time in second, electric current in ampere, thermodynamics temperature in Kelvin, amount of substance in mole, luminous intensity in candela. So इन 7 फंडामेंटल यूनिट्स को जब प्रॉपर एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिफाइन किया गया तो हमारी कोर्स बुक में हम सिर्फ 3 डेफिनेशंस पढ़ेंगे इन स्टैंडर्ड फंडामेंटल यूनिट्स की। फर्स्ट वन इज मीटर. The meter is the length of the path traveled by light in a vacuum during a time interval of 1/299792458 of a second. मीटर को डिफाइन करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया गया जिसमें इन्होंने एक वैक्यूम ट्यूब में से लाइट को पास करवाया और कहा कि अगर लाइट इस टाइम इंटरवल में जितना पाथ या जितना डिस्टेंस कवर करेगी दैट इज़ कॉल्ड 1 मीटर. मल्टीपल्स ऑफ मीटर. यहाँ कुछ मल्टीपल्स हैं या कुछ यूनिट्स हैं जिन्हें हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाते हैं तो हम जो ऑपरेशन करते हैं लाइक मैथमेटिकल जो ऑपरेशन करते हैं वो मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ आएंगे तो हम डिवीजन करेंगे। ये 2 पॉइंट्स बस आपको याद रखने हैं हमेशा, क्योंकि जब आगे चलकर आप चैप्टर्स की प्रॉब्लम्स करेंगे या न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें ये आपके लिए बहुत यूज़ होगा। ये बात आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होगी कि किस तरह से हम अपनी यूनिट्स को कन्वर्ट करें या कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑपरेट करें। सो 1 किलोमीटर चेंज इनटू मीटर. वी नो दैट किलोमीटर इज़ अ लार्जर यूनिट ऑफ मीटर. किलोमीटर बड़ी यूनिट है, मीटर छोटी यूनिट है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ, तो दैट इज़ 1000 मीटर। और एक्सपोनेंट में अगर मैं शो करूँ दैट इज़ 10 की पावर 3 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो सेंटीमीटर छोटी यूनिट है, मीटर बड़ी यूनिट है, तो हम डिवाइड करेंगे 100 से। 1 को डिवाइड करेंगे 100 से तो एक्सपोनेंट में अगर मैं शो करूँगी दैट इज़ 10 पावर -2 मीटर। इसी तरह अगर 1 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो एज यूजुअल मिलीमीटर इज़ स्मॉलर यूनिट एज कम्पेयर टू मीटर। तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए अगर मैं एक्सपोनेंट में शो करती हूँ तो दैट इज़ 10 पावर -3 मीटर. नाउ kilogram is the mass of prototype cylinder of platinum iridium alloy preserved at the International Bureau of Weight and Measures at Surf near Paris. अब किलोग्राम को जब स्टैंडर्ड किया गया, जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो उन्होंने एक सिलेंडर प्रोटोटाइप सिलेंडर बनाया। वो बेसिकली प्लाटीनियम और इरिडियम अलॉय से मिलकर बना था और फिर उन्होंने इसका वेट लिया और कहा कि इस जो सिलेंडर का जो प्रोटोटाइप सिलेंडर है जो प्लाटीनियम इरिडियम से मिलकर बना है, इसका जितना वेट होगा वो हमारे पास 1 किलोग्राम कहलाएगा, जो आज भी वेट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर में प्रिजर्व है। ये इसकी पिक्चर है इस प्रोटोटाइप सिलेंडर की। नाउ देयर सब मल्टीपल्स ऑफ किलोग्राम। वही अगर हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाएंगे तो डिवाइड करेंगे, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। 1 ग्राम को अगर मुझे किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, 1 ग्राम को स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो मैं 1 को डिवाइड करूँगी 1000 में के साथ। तो जो एक्सपोनेंट में अगर मैं शो करूँ तो दैट इज़ 10 पावर -3 किलोग्राम। इसी तरह 1 मिलीग्राम को अगर मैं एक्सपोनेंट में शो करूँ दैट इज़ 10 पावर -6 किलोग्राम। 1 माइक्रोग्राम
that is 10 minus 9 kilogram. Now standard of time second. 1 second is the time taken by 91926317770 oscillations of the light emitted by cesium-133 atom. जब टाइम के यूनिट सेकंड को स्टैंडर्ड किया गया तो उस वक्त एक एक्सपेरिमेंट हुआ, उन्होंने कहा, जो साइंटिस्ट है उन्होंने कहा कि सीजियम एटम की जो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस है दैट इज़ 91926317770, जितने टाइम इंटरवल में सीजियम एटम इतनी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस लेगा उसे हम 1 सेकेंड कंसीडर करेंगे. So multiples of second, we know that 1 minute is equals to 60 second, 1 hour is equals to 60 minute. और अगर हम 1 hour को सेकंड्स में चेंज करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम जानते हैं 1 hour में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, और उन 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड होते हैं. तो 60 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, दैट इज़ 3600 सेकंड्स. कुछ होमवर्क असाइनमेंट है, ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए. फर्स्ट वन इज द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 0.53 10 power minus 10 meter. Convert it into centimeter, millimeter and nanometer. Now question number 2 is the mass of an electron is 9.11 10 power minus 31 kg. Convert it into gram, milligram and microgram. होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.